His diligence, his academic prowess, his brilliance, and his capacity for hard work and persistence. So these qualities are just worthy of celebration, and we are absolutely thrilled to celebrate his success with him and his family today. We have with us, as well as his esteemed parents, Mr. and Mrs. Shrastha, we also have the head of quality assurance of City Monastery School, Mrs. Sushmita Vasu, and the great principals of this campus, senior principal, Mrs. Jyoti Kashyap, and the principal, Mrs. Shivani Singh. And I will also take the name of the personage who was the previous principal of Aliganj campus during the time when Aditya was also there. His period in CMS Aliganj one campus straddles the period of two principals, Mrs. Gauri Khanna and then Jyoti Kashyap and Mauledi Shivani Singh. So, and several of his teachers are also here. We are so grateful and happy that his teachers are there as well to celebrate his success with him. We will to continue to achieve these feats later in life and to give back to society lots and lots and lots. So I would request that the film be started. It's a very... Sir, my name is Aditya Shrastha. I come from Lucknow. I did my basic schooling from there itself. After that, I did my BTech and Tech World degree from IIT Kanpur. After that, I worked for around 15 months in Goldman Sachs, and since then, I have been preparing for UPSC. Aditya, with such an illustrious background and having worked with MNC, why do you want to join the civil services? So actually, this was a well thought out decision. So initially, coming from my kind of background, my focus was on attaining financial stability. So I did the job, etc. But once I went there, I realized that money stopped being the differentiator. And so I was looking at what my career should look like. There, civil services offered the opportunity to basically contribute positively to the system, of which I am already a part, and have impact on grassroots levels, and also innovate within the framework. So those were the kind of things I was looking for. So I decided to switch. आदित्य श्रीवास्तव की पढ़ाई जो है उससे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के अलीगंज ब्रांच में हुई है। वो मॉन्टेसरी से लेकर के और इंटरमीडिएट तक की परीक्षा CMS अलीगंज से ही स्टार्ट किया है उसने। बीटेक एमटेक की डुअल डिग्री लेने के बाद उसका सिलेक्शन गोल्डमैन सैक्स कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, वहाँ उसने 15 महीने जॉब किया। 15 महीने जॉब के बाद वो सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि उसके बचपन से इच्छा थी कि हमको सिविल सर्विस करना है। तो वहाँ उसने रिजाइन किया और घर आकर के उसने तैयारी शुरू की। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो प्री में क्वालिफाई नहीं हो पाया, क्योंकि सफाई उसकी उतनी हो नहीं पाई थी ठीक से। सेकेंड अटेम्प्ट में फिर उसने डिटर्मिनेशन से एग्जाम दिया सेकेंड अटेम्प्ट में, तो उसके 236 रैंक आए थे, इससे उसको IPS मिला था। फिर उसके नेक्स्ट में वो थर्ड अटेम्प्ट जब दिया तो UPSC में उसने ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट प्राप्त किया है। उसमें काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा है स्कूल का, स्कूल के टीचर्स का। जगदीश सिंह एक खास करके करता ही था, मिनिमम उससे ज़्यादा हो जाए तो यानी कि 10 से 12 घंटे पढ़ाई शुरू से की। स्कूल से वो करीब 4 बजे आ जाता था। तो जनरली होता है बच्चे को खेलने चले जाते हैं या थोड़ा रिटर्न करते हैं। ये था कि सबसे पहला इसका काम यही था, सबसे पहले तो ये होमवर्क करना। इसका बचपन से ये चीज़ थी। UPSC में एक सब्जेक्ट है GS में इथिक्स का पेपर है। इथिक्स का पेपर उसमें मार्क्स लाना आसान नहीं होता है, टफ होता है। लेकिन आदित्य ये कहता था कि इथिक्स का पेपर हम CMS के जो लोग पढ़े हुए हैं और जो गांधी जी के मोटिवेशनल स्पीच को वो ध्यान से सुने हैं और उसको अपने आप में ढाला है, उनके लिए ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट नहीं है। पूजा पाठ में हनुमान जी का तो भक्त है वो, ऐसे होता है बड़ा मंगल जो होता है उसमें, बड़ा मंगल हर साल ये बड़ा मंगल का फास्ट किया करता था। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि CMS के सारे टीचर्स, शिक्षक, प्रिंसिपल, खासकर गांधी जी का परिवार, भारती गांधी जी, जगदीश गांधी जी, गीता गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। I'm proud to say this, that he has always been a very good student, a very good sports person, very dedicated and committed to his goal. He has always been very, very humble. He has taken part in all the assemblies, in all the co-curricular activities, and has a very strong value system for which we all can be proud of. वहाँ पढ़ाने की वजह से मेरे बच्चे का बेस बहुत मजबूत हुआ। 7th क्लास में था तो वो सारे ब्रांच में टॉप किया। धीरे वो 10th में टॉप किया, फिर 12th में टॉप किया। इससे फूड की टोकरी के साथ मुझे तौला जाता था। तो टीचर्स तो इतने अच्छे थे, इतने कोऑपरेटिव। मतलब उसकी जो टीचर गार्जियन थी रीमा मोदी मैम,
वो तो एकदम अपने बच्चे की तरह मानती थी. Yes, Aditya has brought laurels, glory, and I'm sure respected Jagdish Gandhi sir must be very happy. We are missing him. Thank you, Aditya Shrivastava. CMS के माध्यम से ही तो मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग की है CMS लीगल सेक्टर से. मैंने गोल्डमैन सैक्स में नौकरी की है, जैसा कि बता रहे थे मेरे पापा भी. और उसके बाद मैंने यूपीएससी में 3 अटेम्प्ट दिए हैं, जिसमें तीसरे अटेम्प्ट में मेरा ऑल इंडिया रैंक बनाया है. इस पूरी जर्नी में ही मैं कहूँगा कि मेरे पेरेंट्स का और मेरे स्कूल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, न सिर्फ मेरी पर्सनैलिटी को शेप करने में, बल्कि मुझे उस रास्ते पर ले जाने में भी, इस रास्ते पर चल के मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ. सर, इस वक्त काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं आप स्कूल आकर. जी मैम, डेफिनेटली मेमोरीज हैं स्कूल से काफ़ी सारी, और इतना सारा ऑनर पा करके उस स्कूल से जिससे मैंने पढ़ाई की है, डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. चलिए एक सवाल और, पूरी तैयारी के दौरान आपने किन चीज़ों को सैक्रिफाइस किया, किन चीज़ों को त्यागा? मैम पहला तो मैं कहूँगा टाइम, डेफिनेटली, क्योंकि ये एग्जाम टाइम बहुत ज़्यादा मांगता है, तो टाइम से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप और कर सकते थे वो सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं. और उसके अलावा मैं कहूँगा कि मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, तो वो भी बंद हो गया था काफ़ी समय तक. बट मैं पूरी तरह से कट ऑफ नहीं हुआ था, लाइक सोशल मीडिया ही चलाता ही था, मेरे को डायनासोर्स के बारे में पढ़ना पसंद था, तो वो मैं करता ही था. तो इस तरह के कुछ सेक्रीफाइसेस थे और कुछ चीज़ें मैंने कंटिन्यू की, जो कि आगे चल के मेरे को इवन इंटरव्यू में भी काम आई. Aditya, what will you do for the country now that you have achieved this position? What exactly are your priorities? What do you plan to do? And which cadre are you getting? Ma'am, so addressing the second question first. Currently, cadres are not out yet, but I've opted as UP as my first preference, and I'm hoping to get that. About the second question that you asked, ma'am, currently जिस सर्विस में मैं हूँ, वहाँ पर मेरा पहला तो एम ये होगा कि इनिशियली हम एग्जीक्यूशन पार्ट में होते हैं, तो आई वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट ऑल द गवर्नमेंट स्कीम्स टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी. उसके बाद जब आगे चल के कभी पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मौका मिलेगा, तो डेफिनेटली मैं हेल्थ, एजुकेशन और स्पेशली चिल्ड्रन के लिए काम करना पसंद करूँगा. सर, प्रीलिम्स के लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी थी आपकी सर? अपनी एक गलती से मैंने ये मेन चीज़ सीखी थी कि प्रीलिम्स में आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का मिश्रण चाहिए होता है. तो हार्ड वर्क में तो डेफिनेटली हर कोई हर प्रकार की किताबें पढ़ रहा होता है, बट स्मार्ट वर्क में एक चीज़ जो कई लोग इग्नोर कर देते हैं वो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस. तो नॉट जस्ट पास्ट 10 years जैसा हर कोई कहता है, बल्कि मेरा स्पेशल फोकस था कि मैं पिछले 3 साल के पेपर्स को ढंग से एनालाइज करूँ कि किस प्रकार गलत स्टेटमेंट या किस प्रकार सही स्टेटमेंट फ्रेम किए जा रहे हैं, ताकि मैं ऑन द स्पॉट एलिमिनेशन अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको और इम्प्रूव कर सकूँ. ऑप्शनल सर क्या था, और क्या कुछ रेफरेंसेस और क्या कुछ आपकी जो है स्टडी मटेरियल था सर? ऑप्शनल मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, और रेफरेंसेस तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि 14 सब्जेक्ट्स थे तो 14 किताबें भी थी हमारी, तो वो मैं अलग से डाल पाऊंगा, यहाँ पर बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा. परेशान करने वाले सवाल एग्जैक्टली नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कॉर्डियल एटमोसफियर होता है. कुछ सवाल डेफिनेटली होते हैं जो आपको आते नहीं होते, जैसे कि इस बार भी मेरे से ललिता कुमारी जजमेंट पूछा गया था, जो कि उनको एक्सपेक्टेड था कि मुझे पता होना चाहिए, बट मुझे उसका ध्यान नहीं आ रहा था. तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली होते हैं. बाकी इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. What message will you deliver to those struggling students who are coming into the UPSC exams? मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली 2 चीज़ों का खास ध्यान रखें. पहला कि ये एग्जाम डेफिनेटली आपका परसिवियरेंस ही चेक करता है, तो जो भी आपकी असफलता है उससे परेशान नहीं होना है. इवन मैं अपना एग्जाम्पल देके कहूँ तो पहली बार मुझे भी असफलता ही प्राप्त हुई थी, बट उस समय इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपने मिस्टेक्स से सीखें और उनको कैसे दूर कर सकते हैं इस पर ध्यान दें. और दूसरा होगा कि डेफिनेटली आपको कंसिस्टेंसी के साथ अपना एक डेडिकेशन और सेल्फ मोटिवेशन भी जरूरी है, क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है, कई साल लग जाते हैं. इवन फर्स्ट अटेम्प्ट में करने वालों को भी 2 साल तो लगता ही है, तो उस कंसिस्टेंसी के लिए वो सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है. सर, इसी से जुड़ा सवाल है, किस चीज़ ने आपको इतना मोटिवेटेड रखा सर? आई वुड से डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी था. जी, मैंने न्यूज़पेपर की पढ़ाई इतना डिलीजेंटली में नहीं कर पाया था. मैं मेनली कंपैरिजन पे निर्भर करता था प्रीलिम्स और मेंस के दौरान. फिर जो मेरा इंटरव्यू हुआ IPS वाला, तो उस बार मैंने न्यूज़पेपर की उसमें जो न्यूज़पेपर पढ़ने रिकमेंड किया था तो मैंने वो किया था, और उनके नोट्स मैंने इस वाले अटेम्प्ट में यूज़ किए. तो आई कैन नॉट बी 100% श्योर कि कौन सी स्ट्रैटेजी काम आती है, क्योंकि इस बार डेफिनेटली मैंने न्यूज़पेपर्स के जो नोट्स बनाए थे वो भी यूज़ किए.
आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली 30 से 45 मिनट न्यूज़पेपर को दें। सर अभी लखनऊ में आप कब तक हैं, क्योंकि हमने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी शायद आपका कार्यक्रम है जाने का। जी इसके बारे में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं, बट ऑनरेबल सीएम अगर मुझे बुलाएंगे तो डेफिनेटली मिलना पसंद करूंगा। व्यवहार एक लास्ट क्वेश्चन, तो क्या समझते हैं कि आने वाले सीजन में भी और पहले क्या इसका महत्व और कैसा आप देखते हैं? जी मैं मानता हूँ कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी है, क्योंकि खासकर मेरे क्षेत्र में जिसमें जाना चाह रहा हूँ वहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इंपॉर्टेंट है, ना कि किसी प्रॉब्लम को लेकर के बैठ जाने वाली अप्रोच। तो आई वुड डेफिनेटली से कि एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है के बेटे आदि श्रीवास्तव जी ने ऑल इंडिया टॉप किया IAS में, तो क्या कुछ आप कहना चाहती, क्या कुछ आपकी ओर से अलग एक्स्ट्रा अनुदान रहा है क्या, किस प्रकार से आपने सहयोग किया है बेटे की इस सफलता में? बेटे की सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान उसके पापा का रहा है। जी जी। जैसे मदर का तो ये रहता है घर का जो देख रेख उसके बच्चे को देखना ही है, लेकिन ये जो मोटिवेशन दिया है वो पापा ने दिया है उसके बचपन से ही कि तुमको IAS बनना है जी। और उनकी मेहनत, बच्चे की मेहनत और ने आज ये रंग लाई। और अभी जो लोग भी माता पिता अपने बच्चों की हर प्रकार की जॉब के लिए तैयारी करा रहे, उन गार्जियंस के लिए आप क्या कहना चाहती हैं सुझाव में, या मतलब के लिए? गार्जियंस के लिए ये कहना चाहते हैं कि बच्चे का भी साथ दें, क्योंकि बच्चा कभी मान लीजिए कभी उसका सही नहीं हो पाता है एग्ज़ाम, तो भी उसको सपोर्ट करें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर आपको मिलता है चांस तो बच्चा ज़रूर करेगा अच्छा। तो पहले तो बच्चे के साथ आपको रहना है कि कुछ भी कोई भी तरह का उसका एग्ज़ाम अगर सही नहीं होता है तो उसको मोटिवेशन दें कि आगे अच्छी पढ़ाई करो, आगे तुम्हारा होगा। आदि श्रीवास्तव जी ने ऑल इंडिया IAS में टॉप किया है, आप उनके पिता हैं, तो क्या क्या एक्स्ट्रा आपका सहयोग साथ रहा है, कैसे मतलब इस बड़ी सफलता में आपका किस तरह से क्या साथ रहा है? देखिए तैयारी तो भाई मेहनत तो उसी ने किया है जी, और हम लोग बस इस सपोर्ट में खड़े रहे हैं। जैसे वो रिजाइन देने की बात, भाई उसकी तैयारी नहीं हो पा रही थी तो रिजाइन देने की उसने बात किया कि हम लोग ये रिजाइन दे देते हैं, फिर उसका सेल्फ स्टडी करेंगे। तो यही सब हम लोग का सहयोग है। हमने कहा इसमें क्या तुमको पहले ही हमने कहा था कि जो है जॉब करने मत जाओ, भाई कर लिए थे उसका, अगर मैं तैयारी करते तो इसने जो है चला गया वहाँ पर। जब लोग कह रहा है कि हम लौट के आएंगे, हम तैयारी करेंगे, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लिए, बोले आओ घर से तैयारी करो। यही सब गार्जियन यही सपोर्ट कर सकता है, और क्या करेंगे हम लोग। पढ़ने वाला है उसकी तैयारी तो उसी को करना है। बिल्कुल सही बात है। कितने घंटे रोज पढ़ाई वगैरह करते थे? आदि देखिए 12 घंटे कंटिन्यूस, 12 घंटे मिनिमम 12 घंटे, ज़्यादा करता होगा कम नहीं करता होगा। ठीक है कि अगर इसका कोई ऐसा हॉबी तो है नहीं कुछ कि बाहर जाना है, घूमना है, फिरना है, कोई एक्टिविटी नहीं है। जब ये रिजाइन करके आया है कि तैयारी हमको करना है, उसके बाद से कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की बनती है जी। बहुत सारे भारतवासी लोग हैं जिनके माता पिता ने बच्चों की हर तरह से तैयारी में सहयोग कर रहे हैं, उन गार्जियंस के लिए आप अपने सुझाव में क्या कहना चाहते हैं? देखिए तैयारी का गार्जियन हम लोग को तो करना नहीं है, तैयारी तो बच्चे को ही करना है, लेकिन हम लोग जैसे कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं बच्चे में कि भाई ये UPSC करे या इंजीनियरिंग IIT करे, तो बच्चे को जस्ट तो हम लोग गार्जियन कर ही लेते हैं भाई उसके परफॉर्मेंस से, स्कूल के परफॉर्मेंस से या कॉलेज के परफॉर्मेंस से इतना जस्ट तो हो ही जाता है कि क्या करेगा बच्चा। तो हम लोग चाहें कि भाई जिस लाइन में वो जाना चाहता है या जिसके काबिल है उसकी तैयारी करानी चाहिए, उसको करना है, बच्चे को वही करना भी चाहिए, और हम लोग को सपोर्ट ही करना है।